गुड मॉर्निंग. वी आर स्टडिंग एनिमल न्यूट्रिशन और हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स. वी विल स्टडी द रोल ऑफ विटामिन्स, देयर सिग्निफिकेंस, their functions and their deficiency disorders. So what are vitamins? These are chemical entities which are essential for maintaining the normal metabolic processes at cellular levels. Basically vitamins are chemical substances which are required in very minute quantities in the diets, and failing to do so, अगर उसमें डाइट में इंक्लूड नहीं होते हैं, then it will lead to deficiency disorders inside the body because they are important for various metabolic processes occurring inside our body. And एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है, these are required in very minute quantities, ठीक है, and they are involved in various metabolic processes. Different metabolic steps जो हैं, metabolic processes हैं, कुछ metabolic reactions है, physiological functions है vitamins की. तो अगर वो नहीं होते, if the dietary supplementation is not there, then it will lead to deficiency disorders inside the body of animals. So the term vitamin, it was coined by Casimir Funk. ये आपने याद रखना है, पहले इसमें E लगता था because it was called as vital amine. Basically the vitamins which were discovered in initially, they were of amine compounds, उसमें amine group होता था. So based on that, Casimir Funk, he named it vital amines, and thereafter the S was and ES was removed. ठीक है, तो basically इसका E हटा दिया last में because not all of them were amine groups नहीं थे. ठीक है, apart from this other groups were also present. Some were steroid. ठीक है, amine is basically a protein compound, NH2 जिसको कहते हैं amine group. But not all of them contain the amine group. Some are steroids as well. ठीक है, for example, vitamin D. Vitamin D जो है वो basically it is a steroidal compound. ठीक है, today we will discuss that कैसे वो starting से बनता है. तो basically it is developed, it is formed inside our body itself. ठीक है, UV radiation की जरूरत होती है. So these are not only vitamins but other compounds as well. Therefore इसका नेम जो है वो बाद में चेंज कर दिया गया था. बेसिकली E was dropped and vitamin अब इसको कहते हैं. So chemically all of them are unrelated, but each of them have a biological activity inside the body. And not all are vital amines but indispensable for life processes, which means कि ये बहुत important है for our body, for our life. Then lack causes specific deficiency disorders, dietary or metabolic, and some are dietary essential, some are metabolically essential. What does it mean? कुछ dietary essential है, कुछ metabolically essential है. देखो, सभी के सभी vitamins are metabolically essential, which means that they are required for the metabolism occurring inside our body. But not all of them are dietary essential. जैसे कि vitamin D, ठीक है, vitamin D can be synthesized by our own body itself. ठीक है, UV rays होनी चाहिए, ठीक है, and it will be synthesized by our own body. तो it is metabolically essential but not dietary essential. But जब भी deficiency disorders होती हैं उस टाइम पे it needs to be supplemented externally. ठीक है, तो उस टाइम पे it needs to be supplemented. उस टाइम पे dietary essential भी हो जाती है, but not all of them are dietary essential. For example, vitamin B12. Vitamin B12 in ruminants, ठीक है, it is not dietary essential because if cobalt will be present inside the diet of these animals, अगर ruminants की diets में cobalt present होता है तो ruminants are able to synthesize vitamin B12 from cobalt itself. How? क्योंकि उनके जो rumen microbes होते हैं वो cobalt को utilize करके वो synthesize कर देते हैं. Vitamin B12 synthesize कर देते हैं rumen के अंदर, ठीक है, rumen microbes, which means कि उनकी बॉडी में तो विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द डाइट. अगर कोबाल्ट भी सप्लीमेंट होगा देन दे विल बी एबल टू सिंथेसाइज विटामिन B12, विच मीन्स कि उनकी डाइट में विटामिन B12 नीड नॉट बी सप्लीमेंटेड बट कोबाल्ट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड, विच मीन्स कि कोबाल्ट इज डाइटरी एसेंशियल but vitamin B12 is not dietary essential but metabolically essential. तो ये मतलब है इस लाइन का. And other B complex vitamins also,
Not only vitamin B12, the other vitamin B complex, B1, B2, B3, etc., all of them can be synthesized by the rumen microbes. So in ruminants, B vitamins are synthesized by rumen microflora and therefore not dietary essential. Then choline, also structural constituents vitamin C. Most of the animals can synthesize vitamin C. ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं विटामिन सी. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे इसको भी. देन टू टाइप्स, अब बेसिकली हमने दो टाइप्स में इसको क्लासीफाई कर दिया है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, आपके माइंड में हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है. ठीक है, और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई के, एंड वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स एंड द सी एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है इन विटामिन B12 ऑब्टेन्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम डायरी. रूमिनेंट्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है हमारी. ठीक है, एंड मोनोगैस्ट्रिक स्पीशीज की. ठीक है, उनकी डाइट में विटामिन B12 जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता बॉडी में, सो इट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम डाइट. देन नेक्स्ट कमिंग टू द डिफरेंशिएशन. ठीक है, फैट सॉल्युबल वर्सेस वाटर सॉल्युबल. तो एज द नेम सजेस्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स विल बी सॉल्युबल इन फैट्स एंड ऑयल्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स विल बी सॉल्युबल इन वाटर. तो इनमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयर एज वाटर सॉल्युबल में मोस्टली कोई ना कोई और मिनरल भी एस्टैब्लिश्ड, जैसे विटामिन B12 में कोबाल्ट रहता है और यहाँ पे सल्फर भी होता है. ठीक है, थियामिन में सल्फर है, देन नाइट्रोजन इज ऑल्सो देयर. ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, इट इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम GIT. लेकिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. लेकिन जो विटामिन A, D, E, K, विच मीन्स द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर देयर, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, वो लैक्टियल. बेसिकली इसमें क्या होता है, लिपिड का फेज चाहिए होता है. लिपिड, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन फैट, तो इसलिए ये लिम्फोइड टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, लिम्फ के थ्रू या LDL के थ्रू. ठीक है, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होते हैं. लिपिड फेज चाहिए होता है. एंड इफ फैट एब्जॉर्प्शन इज इम्पेयर्ड, फैट एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स विल अकर. देन एक्सक्रीशन इज वाया बाइल एंड यहाँ पे यूरिन, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल ना, तो ये यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं और यहाँ पे बाइल या फीसेस से. टॉक्सिसिटी, अब बेसिकली स्टोरेज किस में हो रही है, जिन विटामिन की स्टोरेज होती है उन विटामिन की बॉडी में एक्सेस भी होने के चांसेस होते हैं, एंड देन लीडिंग टू टॉक्सिसिटी सिम्टम्स. तो ये होता है फैट सॉल्युबल विटामिन. बेसिकली ये लिवर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, विच मीन्स के एक्सेस ऑफ दीज विटामिन विल कॉज टॉक्सिसिटी सिम्टम्स. और ऐसा बी कॉम्प्लेक्स या सी विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन में नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज वो बॉडी में स्टोर ही नहीं होंगे. तो एक्सेस अगर हो भी जाएगी, इट विल गेट एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन इटसेल्फ, सो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स डज नॉट डेवलप. देन deficiency signs, because these vitamins, fat soluble vitamins are getting stored inside the body, तो इतनी जल्दी deficiency symptoms develop नहीं होते. whereas in the case of water soluble vitamins, because the body is deficient, बहुत जल्दी store भी नहीं हो रहा बॉडी में, तो बहुत जल्दी deficiency symptoms जो हैं बॉडी में develop हो जाते हैं. then synthesis, these are not synthesized by symbiotic microbes except vitamin K. in some reasons vitamin K जो है वो microbes जो है वो synthesize कर देते हैं. whereas इसके केस में क्या है, water soluble vitamins अभी हमने डिस्कस किया, रूमन माइक्रोफ्लोरा जो है वो B complex majority and C also. बट क्या होता है, vitamin C जो है वो बहुत सारे, जैसे कि गिनी पिग्स में, ह्यूमन बींग्स में भी. बेसिकली when we will study about vitamin C, we will discuss how एंजाइमेटिक प्रोसेस, कौन सा एंजाइम उसको कन्वर्ट करते हैं, वो हमारे में एब्सेंट होता है. इवन गिनी पिग्स में भी एब्सेंट होता है, इसलिए उनको डाइट में चाहिए होते हैं. कितनी वैल्यू चाहिए होती है, वी विल डिस्कस ऑल दैट व्हेन वी विल डिस्कस विटामिन सी. बट अभी आप इतना याद रखिए कि रूमन माइक्रोब्स सिंथेसाइज कर देते हैं वाटर सॉल्युबल
विटामिन को, ठीक है, और विटामिन के को भी, इवन दो इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन बट विटामिन के कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड। देन कोएंजाइम में रोल, ठीक है, इसमें ये एज अ कोएंजाइम को फैक्टर काम नहीं करते, बेसिकली दे हैव एंटीऑक्सीडेंट हार्मोनल रोल्स, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में, सेलुलर फंक्शन मेंटेन करने में, ठीक है, बेसिक सेल का फंक्शनिंग दे विल इंश्योर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। एंड विटामिन के का तो आपको अच्छे से पता है, हेमरेजेस को बेसिकली फॉर द क्लॉटिंग, बट ऐसा नहीं है इन द केस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वो एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थियामीन, ठीक है, थियामीन पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में इट विल जो कार्बोक्सिलेशंस, ठीक है, रिएक्शंस जो होती है उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है उस टाइम पे एज अ को फैक्टर इट विल एक्ट, कोएंजाइम ए हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दीज विल एक्ट लाइक अ कोएंजाइम्स या को फैक्टर्स की तरह वर्क करता है, बट ऐसा रोल इसका फैट सॉल्युबल विटामिन्स में नहीं देखने को मिलता है। देन एग्जाम्पल्स हमने एडीई के पढ़ा था, उनके दूसरे नेम होते हैं, बेसिकली ये आपको याद रखने हैं और आपको याद होंगे भी ये वैसे भी। तो रेटिनोल इज फॉर विटामिन ए, बेसिकली विटामिन ए का क्या रहता है नेम, रेटिनोल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड, डिपेंडिंग ऑन द कहाँ पे है वो बेसिकली हार्मोन। जब ब्लड में होता है देन इट इज रेटिनोल, आई में जब इसका फंक्शन होता है देन इट इज रेटिनल, ठीक है, रेटिनल। देन inside the blood again during excretion and during metabolic process it gets converted to retinoic acid. Then cholecalciferol, ठीक है, cholecalciferol, this is vitamin D। तो क्या होता है when it acts on the cellular level, ठीक है, जब ये अपना फंक्शन करता है, मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस किया है, जब हम कैल्शियम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे भी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेटाबॉलिक प्रोसेस, कैसे ये सेल के अंदर जाता है, इट एक्ट्स लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन इनसाइड द सेल, okay, it acts like a steroid hormone inside the cytoplasm, it will react with its receptor and form a complex, receptor complex, just like the steroid hormone, ठीक है। then it goes inside the nucleus, तो उस टाइम पे it acts like a steroid hormone और basic principle वहां पे क्या होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol, ठीक है, that is the active form of vitamin D, 125 डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol। एंड देन टोकोफेरोल, अल्फा टोकोफेरोल, अलग अलग वो होते हैं, अल्फा, बीटा एटसेट्रा, गामा, तो ये दिस इज फॉर विटामिन ई, टोकोफेरोल। फाइलोक्विनोन इज फॉर विटामिन के, ठीक है, फाइलोक्विनोन, मेनाडियोन इज द वन दैट इज सिंथेसाइज्ड। तो दीज आर ऑल नेम्स ऑफ विटामिन के। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको नेम्स याद रखने हैं, थियामीन, ठीक है, B1, राइबोफ्लेविन, B2, नियासिन, नाइसिनामाइड, विटामिन B3, ठीक है। तो these are the examples, the actual names of these vitamins. Next we'll start with vitamin A, ठीक है। आज हम फैट सॉल्युबल विटामिन सब डिस्कस कर लेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस द वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो स्टार्टिंग विद विटामिन ए, तो इसको किसने डिस्कवर किया था, मैकॉलम एंड डेविस एंड ऑसबर्न एंड मेंडल, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कवर किया था विटामिन ए को। सो मेंडल एंड ऑसबोर्न, मैकॉलम एंड डेविस। देन इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल, जो ट्रांस फॉर्म है दैट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म, उसको बोलते हैं रेटिनोल। ब्लड में भी जब ये होता है इट इज रेटिनोल। देन नेचर कैसा है इसका, इट इज नियरली कलरलेस लिक्विड, इट इज सॉल्युबल इन फैट एंड फैट सॉल्वेंट्स एंड ओनली स्लाइटली वाटर सॉल्युबल, बेसिकली इट नीड्स टू बी फैट सॉल्युबल। देन इसको और क्या क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इटसेल्फ, इसके अलग अलग नेम्स है, एंटी जीरोफ्थैल्मिक हार्मोन, बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी से जीरोफ्थैल्मी हो जाता है, ड्राई आईज जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जीरोफ्थैल्मिया इज ड्राइंग ऑफ द आईज, तो उस डेफिशिएंसी को ये, उस डिजीज को ये काउंटर करता है, तो देयरफॉर इट इज, इसको क्या कहते हैं, एंटी जीरोफ्थैल्मिक हार्मोन। देन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शंस, ठीक है, मेस्टाइटिस में भी आप हमेशा विटामिन ए की सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्टिव हार्मोन, ठीक है, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। एंड देन इट्स एल्डिहाइड फॉर्म इज ऑल्सो देयर, रेटिनल, तो विटामिन ए एल्डिहाइड रेटिनल इसको ये भी कहते हैं। देन एग्जिस्ट ओनली इन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में ये होता है एज अ प्रोविटामिन या कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो प्लांट्स में ये एज अ बीटा कैरोटीन एंड अल्फा कैरोटीन अलग अलग फॉर्म्स होते हैं,
बीटा कैरोटीन टू बीटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए बनाता है इनसाइड द एनिमल बॉडी, वो कन्वर्ट हम बॉडी में कन्वर्ट कर देता है बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में। तो क्या होता है प्लांट्स में इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स में रहता है ये प्लांट्स में, एंड देन एनिमल्स कन्वर्ट दीज इनटू एक्चुअल विटामिन ए। देन ऑल फॉर्म, इसके अलग अलग फॉर्म्स जो अभी मैंने आपको बताया, रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड। रेटिनोल इज द अल्कोहलिक फॉर्म, रेटिनल इज द एल्डिहाइडिक फॉर्म, एंड रेटिनोइक एसिड इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। Basically retinol is oxidized into retinal, and then retinal is oxidized into retinoic acid. Then the provitamin A जिसको कहते हैं बीटा कैरोटीन, which is the most potent. इसके अलावा अल्फा एंड गामा कैरोटीन भी होता है, but the beta carotene one is most potent. And cryptoxanthin, these are also there, but beta carotene is most potent. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओके, नीड नॉट बी डिस्कस दैट मच, बट इसमें क्या होता है 20 कार्बन एटम्स होते हैं, ओके। एंड बीटा आयनिन रिंग होता है इसका स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली इसमें क्या होता है बीटा आयनिन रिंग, बीटा कैरोटीन से बना है, बीटा आयोनिन रिंग रहता है इसमें, ठीक है। देन दिस इज द साइड चेन एटसेट्रा। देन ट्रांस कन्फिगरेशन में बेसिकली सिस रेटिनल और ट्रांस रेटिनल, ट्रांस मीन्स बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। ट्रांस और सिस का तो आप जानते ही हैं केमिस्ट्री के टाइम से अपने 11th एंड 12th में जो आपने पढ़ा था, सिस की कन्फिगरेशन एंड ट्रांस की कन्फिगरेशन, ठीक है, बेसिकली डबल बॉन्ड के अराउंड, ठीक है, जो हाइड्रोजन की बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन कन्फिगरेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, तो बेस्ड ऑन दैट द सिस कन्फिगरेशन विल हैव 2 hydrogen atoms at the same side, whereas the trans will have it at the opposite sides. So cis retinol or trans retinol, basically these are interconnected, interconverted into from one into another. ये Wald's visual cycle we will discuss next. तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे how one will convert into the other. Then formation of vitamin A from provitamin A, that is beta carotene. So beta carotene, as I have discussed, it is present inside the feed or the plant, and then when ingested by the animals, it gets converted into vitamin A. So how it does is, it gets ingested, then through intestinal mucosa, it will form the dioxygenase enzyme, will act on the beta ainin ring. Basically अभी हमने डिस्कस किया it contains the beta ainin ring. तो beta ainin ring को ये बेसिकली जो है बीटा कैरोटीन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए बनाते हैं। बीटा कैरोटीन में, ठीक है, एक रिंग होता है, ठीक है, एक रिंग होता है, उसको ये तोड़ देता है, ठीक है, डाइऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो उस पर एक्ट करता है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स विटामिन ए बनाता है। बेसिकली इसमें 40, इसका C40 होता है, इसमें 40 कार्बन होते हैं, वेरस विटामिन ए में 20 कार्बन थे। तो इसलिए क्या होता है बीटा कैरोटीन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन विल गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन ए। एंड ये कैसे एक्ट करता है, डाइऑक्सीजनेज एंजाइम जो है इट विल एक्ट ऑन दैट बीटा आयनिन रिंग पे एक्ट करता है, और इसको 2 पार्ट्स में इट विल ब्रेक डाउन। So 2 molecules of vitamin A, retinal, will form. Then alcohol form, which is stored as retinyl esters. Inside the liver, it will be stored. The storage form है इसकी retinyl esters. Then हमने LPT में भी इसको अच्छे से डिस्कस किया है हर बार कि जो मिल्क ऑफ काउ इज येलोइश टिंज रहती है उसमें, एंड द मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल, बट दैट ऑफ बफलो इज वाइटिश होता है। क्यों? बिकॉज इन बफलोज complete conversion of beta carotene into vitamin A occurs, due to which the secreted compounds in the milk and the other milk products will not have vitamin A, will not have beta carotene. Beta carotene की वजह से yellowish tinge आती है, ठीक है। तो cows में it is not completely converted, whereas in the buffaloes बीटा कैरोटीन कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, विच मीन्स कि बीटा कैरोटीन अब अवेलेबल नहीं है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस, और उसकी वजह से येलोइश टिंज नहीं आती इन द केस ऑफ बफलो मिल्क। सो काउ मिल्क येलो होता है। कैट और मिंक में, कैट एंड मिंक जो है, कैट्स जो होती हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं, जैसे कि वी डिस्कस्ड हाउ इट नीड्स टॉरिन ऑल्सो, ठीक है। तो टॉरिन भी चाहिए होता है उनको, विटामिन ए भी डायरेक्टली चाहिए होता है उनको। सो कैट्स में बहुत सारी चीजें डेफिशिएंट होती हैं, इसलिए कैट्स को डायरेक्टली विटामिन ए सप्लीमेंट नीड्स टू बी देयर। देन हॉर्सेस भी स्टोर करते हैं। देन
जैसे मैंने आपको बताया था कैरोटीनॉइड के टाइप्स होते हैं, बीटा कैरोटीन 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, अल्फा कैरोटीन 1 बनाता है, गामा 1, क्रिप्टोजैंथीन 1 मॉलिक्यूल, ल्यूटीन xanthophyll नहीं बनाता, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसका प्राइमरी और सबसे पहला फंक्शन क्या है, विजन के लिए, ठीक है। तो विजन के लिए क्या होता है, बेसिकली अभी जैसे मैंने आपको बताया वी विल डिस्कस इन द वर्ल्ड्स विजुअल साइकिल। वर्ल्ड वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव दिस साइकिल। तो बेसिकली इससे क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो पिगमेंट होती है रेटिना में, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, ठीक है, दैट रिक्वायर्स विटामिन ए, ठीक है, उसमें विटामिन ए की जरूरत होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, अदरवाइज इट विल, तो वो सिग्नल नर्व इम्पल्स जो है वो नहीं कंडक्ट कर पाती, ठीक है, वो एक्चुअल में अंधेरे में नहीं, वो बेसिकली वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो है वो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर पाती है, सो बिकॉज ऑफ विच नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स। देन बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग, क्योंकि ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कंट्रोल्स ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम, जैसे मैंने आपको बताया था इट इज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, तो ये मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करता है। देन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑल्सो, तो एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल ईस्ट्रस। हमने डिस्कस किया था जिंक के साथ भी विटामिन ए का रोल रहता है, ठीक है। उस टाइम पे वी डिस्कस्ड कि जैसे रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन को जिंक सिंथेसाइज करता है। देन इट विल ऑल्सो हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ रेटिनोल इनटू रेटिनल, इंटर कन्वर्जन जो होती है वहां पे भी जिंक का रोल होता है, इसलिए जिंक की डेफिशिएंसी से भी स्पर्मेटोजेनेसिस गेट्स अफेक्टेड एंड हेयर ऑल्सो, विटामिन ए का भी रोल रहता है। देन इन द नर्वस सिस्टम ऑल्सो, तो इट विल लीड टू अटेक्सिया और नर्वस सिम्टम्स, ठीक है। सो दीज वर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। विजन में हमने क्या पढ़ा, विजन, बोन ग्रोथ, रीमॉडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियम, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस एंड देन द नर्वस सिस्टम। तो इसकी वजह से वेन एवर देर विल बी डेफिशिएंसी, तो ये फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद द विजन, रेटिनोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेटिनल, जैसे मैंने आपको बताया था रेटिनोल जो है आईज में रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो पहले सिस रेटिनल में कन्वर्ट होता है, देन इट कंबाइंस विद ऑप्सिन टू फॉर्म रोडोप्सिन विच इज द विजुअल पर्पल, एंड बेसिकली दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन, फॉर द डिटेक्शन। देन लाइट जो है, लाइट की प्रेजेंस में जो ट्रांस रेटिनल है वो ऑप्सिन के साथ कंबाइन करके नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, एंड देन इट विल अगेन कन्वर्ट टू सिस रेटिनल, ठीक है, सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए रॉड सेल्स जिसमें रोडोप्सिन होता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है नाइट विजन के लिए। कोन्स में आइडोप्सिन होता है, ठीक है, ये तो आपको याद होगा, रॉड्स में रोडोप्सिन होता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट विजन। कोन्स में आइडोप्सिन होता है, ठीक है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कलर विजन और द फोटोपिक विजन, ठीक है। देन बोन ग्रोथ, रीमॉडलिंग, एज आई सेड, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के लिए इट नीड्स टू बी देयर, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग। तो इससे क्या होता है, एपिथेलियल कार्टिलेज जो है, बेसिकली ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो है इट गेट्स अफेक्टेड, बोन रीमॉडलिंग गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। देन इससे क्या होगा, एक्सोस्टोसिस बन जाएंगे, ठीक है। जिंक के केस में भी इट वाज द सेम थिंग, तो एक्सोस्टोसिस बनते हैं, तो विच मीन्स कि इवन स्कल में भी इट एक्सर्ट्स प्रेशर, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड नर्व गेट्स डैमेज्ड। Then maintenance of epithelium, it maintains the integrity of epithelial cells. Then deficiency से क्या होता है, squamous keratinized cells जो होते हैं वो columnar, basically this is important here, squamous keratinized cells जो होते हैं वो columnar cells को replace कर देते हैं, ठीक है। columnar cells are basically important for the, जब भी कुछ columnar cells, cuboidal cells, ये cells होते हैं important जब secretion होती है, ठीक है। कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशली दैट इज फॉर द सिक्रीशन इटसेल्फ, एंड कॉलमनार सेल्स होते हैं जब भी फॉर द पैसेज, जहां पे भी पैसेज होगी किसी चीज की वहां पे कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी जगह पे स्क्वामस एपिथेलिया आ जाता है, स्क्वामस सेल आ जाता है, ठीक है, स्क्वामस केराटिनाइज्ड सेल्स आ जाते हैं। तो एंड केराटिनाइज्ड सेल्स और स्क्वामस सेल्स का आपको पता है जैसे स्किन में होता है, तो इसका
इसका प्रॉपर फंक्शनिंग गेट्स अफेक्टेड। कॉलमनार सेल्स ने जो ट्रांसपोर्टेशन करनी थी, जैसे कि ईसोफेगस में भी कॉलमनार सेल्स रहेंगे, तो वहां पे भी इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द स्क्वैमस केराटिनाइज्ड सेल्स। ठीक है, इनिशियल लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस कंटेन्स द स्क्वैमस सेल्स, बट आफ्टर दैट फॉर द पैसेज वो कॉलमनार सेल्स होते हैं वहां पे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, जितने भी ट्रैक्ट जो होता है ना, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, सारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड द यूरिनरी ट्रैक्ट, जहां पे भी पैसेज होना है किसी सब्सटेंस का, वो सेल जो है वो कॉलमनार सेल की फॉर्म में होता है। ठीक है, आप एनाटॉमी में यू विल स्टडी दिस इन मच डिटेल। तो वो हमेशा कॉलमनार सेल की फॉर्म में होगा। अब अगर कॉलमनार सेल जो है वो रिप्लेस हो गया है स्क्वैमस सेल से, तो कॉलमनार सेल्स में तो इवन विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द स्क्वैमस सेल। और स्क्वैमस सेल का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन होता था उसका फंक्शन। ठीक है, स्क्वैमस सेल प्रोटेक्शन फंक्शन है उसका। अब यहाँ पे कॉलमनार सेल का जो फंक्शन होता था पैसेज, दैट गेट्स अफेक्टेड, विच मीन्स कि अब एपिथेलियम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। केराटिनाइजेशन हो गई है एपिथेलियम की। ठीक है, क्योंकि केराटिनाइज्ड सेल्स हो गए तो केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम हो जाती है, एंड देन जो है इन्फेक्शंस अकर। ठीक है, ड्यू टू विच इन्फेक्शन स्टार्ट अकरिंग केराटिनाइज्ड, उसकी वजह से देन माइक्रोबियल एंट्री को ये प्रिवेंट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि जो कॉलमनार सेल्स थे, ठीक है, वो उन्होंने सिक्रीट भी किया। गॉबलेट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉलमनार सेल्स, तो वो म्यूकस से भी वो प्रोटेक्शन करते थे। बट नाउ सिंस द विटामिन ए डेफिशिएंसी अकर्स, तो वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिक्रीट भी करते थे वो। ठीक है, वहां पे क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड। IgA जो होता है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, दैट इज अ सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, एंटीबॉडी दैट गेट सिक्रीटेड। ठीक है, इन द GIT, इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, इन द GIT बेसिकली। तो अब वो नहीं सिक्रीट होगा, विच मीन्स कि अब प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो द माइक्रोबियल गेन्स एंट्री इनसाइड द सेल्स, केराटिनाइज्ड सेल्स। सो बेसिकली इसीलिए इसको एंटी इन्फेक्टिव वाइटामिन कहते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट्स ऑल दैट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ये तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। देन रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल। इसलिए फॉर द रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, फॉर द ब्रीडिंग एफिशिएंसी, इट नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड इनसाइड द डाइट। तो डेफिशिएंसी से सेक्सुअल एक्टिविटी इज डिक्लाइंड, एब्नॉर्मल स्पर्मेटोजोआ, इनफर्टिलिटी, एवियन स्पीशीज में एग प्रोडक्शन, हैचेबिलिटी। नर्वस सिस्टम में स्केलेटल ग्रोथ, जैसे ये रीमॉडलिंग और बोन ग्रोथ के लिए था, तो स्केलेटल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट इन यंग एनिमल्स, इसीलिए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स विल अकर। देन डेफिशिएंसी विल लीड टू अटेक्सिया, फर्स्ट सिम्टम इन ग्रोइंग चिक्स। सेरेबेलम एंड सेरेब्रम प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। इंक्रीज्ड CSF प्रेशर ऑब्जर्व्ड इन कैटल, डॉग्स एंड पिग्स। डॉग्स में भी ये काफी ऑब्जर्व किया गया है। So this was about the deficiency. हाँ, now let's discuss the Wald's visual cycle. तो क्या होता है? ठीक है, ट्रांसरेटिनोल, ऑल ट्रांसरेटिनोल मतलब सारे ही जितने भी डबल बॉन्ड्स है वहां अराउंड। ठीक है, तो ऑल ट्रांसरेटिनोल फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू सिसरेटिनोल। सिसरेटिनोल जो है वो फिर सिसरेटिनल में कन्वर्ट होता है। रेटिनोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेटिनल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ, जब भी अंधेरा होता है तो रेटिनल जो है वो ऑप्सिन की प्रेजेंस में रोडोप्सिन बनाता है। ठीक है, रोडोप्सिन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज द पिगमेंट फॉर द नाइट विजन। ठीक है, रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन द रॉड्स एंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द नाइट विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो रोडोप्सिन जो है वो रेटिनल एंड ऑप्सिन से बना होता है। ठीक है, 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन से इट विल, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस, इट विल फॉर्म रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट इज वाइटल फॉर द विजन इन द नाइट टाइम। तो रोडोप्सिन जब भी लाइट होता है इट विल ब्रेक डाउन, लाइट की प्रेजेंस में इट विल अगेन ब्रेक डाउन इनटू ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल। ठीक है, रेटिनल में ब्रेक डाउन हो जाता है। रोडोप्सिन जो है वो जब भी लाइट होती है उसकी प्रेजेंस में इट विल ब्रेक डाउन इनटू ऑप्सिन एंड देन all trans retinal, and then retinal will get converted into retinal, and then it goes on. ठीक है, इसलिए ये साइकिल है ये बेसिकली। तो जब भी लाइट आएगी रोडोप्सिन ब्रेक डाउन हो जाएगा, अंधेरे के टाइम पे इट विल फॉर्म। तो इसी से क्या होता है, नर्व इम्पल्स जनरेशन होती है। एंड आप देखो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी
तो रोडोप्सिन विल नॉट फॉर्म, क्योंकि रेटिनल नहीं होगा, रेटिनोल नहीं होगा, रेटिनोल नहीं, ये सब नहीं होगा, विच मीन्स कि रोडोप्सिन विल नॉट फॉर्म। तो नाइट टाइम में ब्लाइंडनेस हो जाती है, नहीं देख पाते, क्योंकि नर्व इम्पल्स इज नॉट जनरेटेड। सो दैट इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। तो रोडोप्सिन 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन के साथ कंबाइन करके बनता है। लाइट जो है वो ब्लीच कर देती है रोडोप्सिन को, बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में रिलीज हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल एंड देन ऑप्सिन अगेन, एंड फिर यहाँ पे साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेशन हो जाती है। जब भी विटामिन ए विल बी डेफिशिएंट तो रोडोप्सिन नहीं होगा, विच मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, विच इज ऑल्सो नोन एज निक्टेलोपिया। तो नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टेलोपिया भी कहते हैं। विटामिन A1 दैट इज रेटिनोल, वो प्रेजेंट होता है A2 डिहाइड्रोरेटिनोल, ये होता है मेरीन फिश में। नाउ कमिंग टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आप देखो हमने जो अभी मेटाबॉलिक फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ 2 स्लाइड्स बैक, उसी से रिलेटेड होंगी सारी की सारी इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, starting with night blindness or nyctalopia. Just now as we discussed, it is the earliest and the first sign of vitamin A deficiency because rhodopsin is directly not formed. Rhodopsin जो है वो बनता ही नहीं है, which means कि night blindness results. Inability to see in dim light or slow or dark adaptation caused by insufficient rhodopsin synthesis in the rod cells progresses to total blindness in if untreated. Initial stages में अगर vitamin A supplementation हो जाएगी so it will reverse back, बट लेटर स्टेजेस में कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, इनिशियली अगर इसको इफ अनट्रीटेड, इफ अनमैनेज्ड, ट्रीटमेंट नहीं होती टाइम पे, सो इट विल प्रोग्रेसिवली डेवलप इनटू टोटल कंप्लीट ब्लाइंडनेस। देन जीरोफ्थेल्मी और द ड्राई आई डिजीज, जो अभी हमने इसको स्टार्टिंग में वी डिस्कस्ड हाउ इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी जीरोफ्थेल्मिक वाइटामिन। एंटी जीरोफ्थेल्मिक वाइटामिन बोलते हैं इसको बिकॉज it prevents the occurrence of xerophthalmia, that is dry eyes. तो it is an advanced stage और ये बफलोज वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आई appears wrinkled, thickened, basically केरेटिनाइजेशन हो गई है यहाँ पे भी, तो बाइटॉट्स स्पॉट्स बन जाते हैं, फोमी पैचेस बन जाते हैं, तो कॉर्नियल ड्राइनेस, उसके बाद अल्सरेशन, परफोरेशन एंड देन टोटल ब्लाइंडनेस रिजल्ट्स। तो ड्राइनेस, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाएगी तो अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे, एंड अल्सर एक बार बन जाता है तो इट गेट्स परफोरेटेड ऑल्सो, देन लेटर ऑन इट विल डेवलप इन टोटल ब्लाइंडनेस। तो केरेटिनाइजेशन, एज आई सेड, मैंने क्या बोला आपको, केरेटिनाइजेशन हो जाती है कंजक्टिवा की और कॉर्नियल एपिथेलियम की, क्योंकि जैसे हमने फंक्शंस में अभी डिस्कस किया था, इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड इट्स एब्सेंस तो उससे क्या होता है, स्क्वामस सेल जो है वो रिप्लेस कर देता है। स्क्वामस केरेटिनाइज्ड सेल, केरेटिनाइज्ड स्क्वामस सेल विल रिप्लेस द कॉलमनार सेल्स। तो कॉलमनार सेल्स की जगह पे अब केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम आ जाएगा, सो विच मीन्स की केरेटिनाइजेशन हो जाएगी। तो चिल्ड्रन बिलो एज 5 बिकम इरिवर्सिबल, देन केरेटोपैथी, म्यूकोपोरुलेंट राइनाइटिस एंड केरेटोकंजक्टिवाइटिस इज फॉर्म। Excessive lacrimation is prominent symptoms in cows and horses. Initial stages में there will be excessive lacrimation. Then keratinization of general epithelium, सारे ही जगह पे keratinization हो जाती है, तो basically infections will develop. Columnar mucus secreting cells, जैसे मैंने आपको बताया goblet cells भी होते हैं, columnar cells में goblet cells भी होते हैं। Goblet cells basically they will secrete the mucus. ठीक है, तो म्यूकस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, म्यूकस का काम ही यही है, सिक्रीट करके एलिमिनेट कर देना, एंड वहां पे साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन IgA भी सिक्रीट होती है उसके साथ। सो द कॉलमनार म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स रिप्लेस्ड बाय द स्क्वामस केरेटिनाइज्ड सेल्स। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट विल डेवलप इन राइनाइटिस, स्नीजिंग, कफिंग, न्यूमोनिया। देन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में केरेटिनाइजेशन हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। GIT में डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट में बेसिकली वेर एवर द कॉलमनार सेल्स आर देयर, मैंने आपको बताया था इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पैसेज। तो हर जगह पे ये जितने भी ट्रैक्ट हैं, राइट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, GIT, यूरिनरी ट्रैक्ट, हर जगह पे केरेटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम विल डेवलप। जहां जहां पे केरेटिनाइजेशन हो जाएगी वहां का उसका बेसिक फंक्शन विल गेट अफेक्टेड, एंड द डेफिशिएंसी सिम्टम विल बी एसोसिएटेड विद द cell that is being affected. So
यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी ब्लैडर स्टोन्स हो जाएंगे, यूरिक एसिड डिपॉजिट्स इन द बर्ड्स, देन डिपॉजिट्स ऑफ यूरेट्स फाउंड इन पेरिकार्डियम, लिवर, स्प्लीन एंड अफेक्टेड बर्ड्स के केस में क्या होता है, यूरिक एसिड स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट में भी केराटिनाइजेशन हो जाती है. सो दिस इज अबाउट द केराटिनाइजेशन. ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं दीज आर एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट कमिंग टू द रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी. ठीक है, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कैसे इसमें it is important for the reproductive function, spermatozoa formation, for the spermatogenesis, then also for the normal estrous cycle. So decreased sexual activity, abnormal spermatozoa, degeneration of germinal epithelium, क्योंकि that is also basically वहाँ पे भी germinal epithelium also gets affected. Then females में impaired estrous cycle, abortion, stillbirths and weak offspring. Congenital abnormalities also observed. Then avian species में reduced egg production, hatchability and fertility gets affected. There is infertility, dead, weak or abnormal offspring. मैंने आपको बताया congenital abnormalities की वजह से abnormal offspring will be there in severe deficiency. Then poultry egg production drops, fertile eggs decrease markedly. Nervous signs भी होंगे क्योंकि CSF pressure increase हो जाते हैं, osteoblastic activity inside the skull, osteoplastic activity for the bone remodeling inside the skull that will get affected. तो वो it will generate pressure inside the CSF. CSF will pressure will generate and it will affect the nerve functioning. Then skeletal growth retardation, brain fails to develop normally. Even in the growing developing animals, in the embryo fetus itself, the skeletal development will get affected. Even the brain development will be affected based on this. Then ataxia is the first symptom in growing chicks, different from vitamin E deficiency. Vitamin E deficiency में ठीक है एंसेफ्लोमलेशिया हो जाता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैक्सिया. देन इंक्रीज्ड CSF प्रेशर विल पुट प्रेशर ऑन द नर्व्स एंड देयर विल बी नर्वाइन डैमेज. Convulsions observed in young calves, severe deficiency. Then lesions in cerebellum and cerebrum. Then अलग अलग स्पीशीज में क्या हमको देखने को मिलेगा, इन द कैटल एंड बफलो नाइट ब्लाइंडनेस, lacrimation and eye discharge, rough coat, poor body condition, reproductive failure, abortions and stillbirth. Then convulsions in calves whenever the CSF pressure increases, skin lesions, papillary eruptions. In case of poultry, nutritional droop, ठीक है, discharge from eye, nostrils, white pustula, lesions in mouth, pharynx, esophagus. Urate deposits, just now we discussed, white spot in conjunctiva, ruffled feathers, reduced egg production and hatchability. Then pigs में क्या होता है, incoordination, nervous signs, reproductive failure in sows, piglets born blind or with deformities. Keratinization होती है, increased susceptibility to infections. Then dogs में night blindness, corneal opacity will develop. Cats को वैसे भी vitamin A चाहिए, they cannot use beta carotene. Then growth retardation and then nervous signs. Sheep में same, ठीक है, poor wool quality और बाकी सब चीजें it will be similar. Horses में भी it will be similar only. So this was all about vitamin A. अब हम डिस्कस करेंगे vitamin D. ठीक है, so starting from डिस्कवरी, अगेन मैककॉलम ने इसको डिस्कवर किया था और इसको बोला था रेकिटोजेनिक फैक्टर. बेसिकली क्योंकि ये रिकेट्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है, रिकेट्स को प्रिवेंट करता है, सो इट इज कॉल्ड एज रिकेट. तो उसने इसको रेकिटोजेनिक फैक्टर बोला था. ठीक है, रेकिटोजेनिक इज बेसिकली रिकेट्स से एसोसिएटेड है. देन इसके केमिकल नेम क्या है, D2 जो प्लांट्स में होता है अर्गो कैल्सीफेरोल और ह्यूमंस और एनिमल्स में कोल कैल्सीफेरोल. तो इससे बनता है बेसिकली कोल कैल्सीफेरोल गेट्स कन्वर्टेड. सो कोल कैल्सीफेरोल एंड अर्गो कैल्सीफेरोल. सो नेचर क्या है इसका, इट इज फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू जैसे इसका स्टेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय यूवी रेडिएशन. देन एंटी रेकेटिक विटामिन भी कहते हैं इसको, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं एंड कैल्सीफेरोल भी कहते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल द मल्टीपल नेम्स गिवन टू विटामिन डी. एंटी रेकेटिक विटामिन क्यों, क्योंकि इट प्रिवेंट्स द रिकेट्स. सनशाइन विटामिन क्यों, बिकॉज इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम, इट इज फॉर्म्ड बाय द यूवी. यूवी इसको कन्वर्ट करता है कोल कैल्सीफेरोल. देन कैल्सीफेरोल, ठीक है, एक्टिव फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3, 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीट्रॉल, कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल बेसिकली इसको बोलते हैं कैल्सीट्रॉल. इसकी बहुत मल्टीपल नेम्स है. इट इज द हार्मोनली एक्टिव फॉर्म. जब ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है तब इसको बोलते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरोल. यहाँ विटामिन D3 लिखा है, दैट इज कोल कैल्सीफेरोल. देन प्रो विटामिन क्या रहेंगे, अर्गोस्टेरोल. प्लांट्स में अर्गोस्टेरोल और
हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, सब में डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है. देन यूनिक फीचर इसका क्या है? बिकॉज इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन, इट इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन, इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एंड एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल्स. बेसिकली स्किन में सिंथेसाइज होता है, ठीक है. देन लिवर में और किडनी में जाके कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म्स में थ्रू सब्सिक्वेंट स्टेप्स एज वी विल डिस्कस. तो उसके बाद ये जाके टारगेट सेल्स में एक्ट करता है बाय गेटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म. वहां पे साइटोप्लाज्म में इसका रिसेप्टर पड़ा होता है, रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन करता है एंड देन इट गोज इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर इट एक्सर्ट्स इट्स फंक्शन, ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करेगा एंड देन फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए विल बी जनरेटेड एंड दैट एमआरएनए will further produce the protein associated with this. यहाँ पे है calcium binding protein from the ribosome. So this is the complete functioning and basically इसमें क्या हो रहा है? It is acting like a hormone, क्योंकि hormones भी ऐसे act करते हैं. एक gland होता है, endocrine gland, एक gland से generate होता है, वो blood के through transport होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बाद अपनी खुद की डक्ट नहीं होती, दे आर डक्टलेस, तो उनकी जो सेक्रीशन होती है वो ब्लड के थ्रू जाती है अपने टारगेट सेल्स में. तो विटामिन डी के केस में भी सेम इज हैपनिंग, इसलिए इसको ये हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है. तो पोटेंसी क्या है? D3 इज 3 to 10 times मोर पोटेंट देन D2. देन स्ट्रक्चर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है. स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर है इसका. अर्गो कैल्सिफेरोल D2 का अर्गोस्टेरोल से बनता है. आइसोप्रीन रिंग होते हैं इसमें, ठीक है. यूवी रेडिएशन से प्रोविटामिन D2 बनता है. इसमें 2 बीटा आयोनिन रिंग्स होते हैं. D3 का 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल से बनता है. आइसोप्रीन रिंग्स होते हैं, बीटा आयोनिन रिंग होता है. तो एक्टिवेशन पाथवे क्या होता है? D3 ब्लड से लिवर में जाता है, लिवर में 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल बनता है और फिर किडनी में जाके 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल, ठीक है. तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिवर में ऐड होता है और दूसरा किडनी में ऐड होता है. देन पैराथायराइड हार्मोन भी इसका किडनी वाले स्टेप को कंट्रोल करता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल. तो स्किन में दिस इज अ प्रोविटामिन D3. 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, स्किन रेडिएशन, इट विल कन्वर्ट इनटू विटामिन D3. 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली कोल कैल्सिफेरोल बनाएगा, ठीक है. विटामिन D3 जो कोल कैल्सिफेरोल इट विल फॉर्म फ्रॉम द 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. लिवर में जाके हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है जो कि 25 पोजीशन पे OH ग्रुप को अटैच कर देगा, ठीक है. 25 पोजीशन पे OH ग्रुप को अटैच कर देगा. तो अब ये बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल, ठीक है. तो 25 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग चुका है. अब दूसरा ग्रुप जो है वो फर्स्ट उस पे लगेगा, फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, तो वो लगता है किडनी में, ठीक है. तो फिर ये बन जाता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल, ठीक है. और ये कहाँ सर्कुलेट हो रहा है? ये पूरा सर्कुलेट हो रहा है ब्लड के थ्रू, ठीक है. तो लिवर से बाद में किडनी में आ गया, 1 पे हाइड्रोक्सिलेज हो गया, ठीक है. 1 पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सिलेज हो गया. तो अब ये बन जाएगा हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन. अब फाइनली ये हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन, जिसको कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, ठीक है. कैल्सीट्रायोल भी इसको कहते हैं. तो अब ये बन जाएगा एंड देन ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमारे टारगेट टिश्यूज में. टारगेट टिश्यूज क्या है? इंटेस्टाइन है सबसे पहला, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अकर्स. तो सबसे पहले इंटेस्टाइन में होगा, देन बोन में भी एंड देन किडनी से भी ये एब्जॉर्प्शन करवाता है. सो इट इज वाइटल फॉर द होम्योस्टैसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल्स. ये हमने बहुत इन डेप्थ हमने पढ़ लिया है ये ऑलरेडी, कैल्शियम होम्योस्टैसिस, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट कैल्शियम इन द मिनरल्स वाली क्लास, ठीक है. तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था जब हम विटामिन डी पढ़ेंगे तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे. तो अभी हम इसको फिर से देख रहे हैं. So this was all about the formation of vitamin D. कैसे ये कन्वर्ट होता है, कैसे स्किन में कन्वर्ट होता है, देन लिवर, देन किडनी एंड देन फाइनली इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म बनता है. एंड इनसाइड द सेल इट इज एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन. एंड कैसे ये कैल्शियम की होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है. तो इसकी फंक्शंस डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. तो ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरोल स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन. मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ऑस्टियोपोंटिन एंड कैलमोड्यूलिन, 2 होते हैं ये, ऑस्टियोपोंटिन एंड कैलमोड्यूलिन. दीज आर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स. तो ये जो है दीज आर एसेंशियल फॉर द absorption of calcium from the gut or the intestine. पैराथायराइड हार्मोन इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है किडनी से. लो कैल्शियम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन विल गेट स्टिमुलेटेड एंड देन it will increase the formation of vitamin D3. Then calcium absorption will increase from the intestine. Then calcium mobilization from the bone.
तो ये कैल्शियम जो है वो मोबिलाइज भी करता है, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन के साथ एक्ट करता है. बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम रीसॉर्प्शन. कैल्शियम रीसॉर्प्शन के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करके रखता है. ठीक है, बोन्स के साथ, बोन से लाके. So it is important for calcium homeostasis. Then next skeletal development and then remodeling. वहाँ पे भी mineralization के लिए भी it is important for calcification of osteoid bone matrix. Deficiency causes failure of cartilage calcification. Basically calcification affect हो जाती है, तो cartilage as such रहते हैं, calcify नहीं होता, and that is why rickets develop हो जाता है, हो जाते हैं, rickets हो जाती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो बोइंग ऑफ लेग्स हो जाती हैं. ठीक है, और इसकी मिनरलाइजेशन इज अफेक्टेड. ठीक है, लोअर मिनरलाइजेशन नहीं हुई होती. तो रिकेट्स होता है यंग में एंड ऑस्टियोमलेशिया इन दी एडल्ट्स. तो इट एक्ट्स लाइक अ हार्मोन जो हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. बाइंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इन द टारगेट सेल्स, एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस. तो दिस वाज ऑल अबाउट द ये फंक्शन जो है हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड. तो अब इसको डिस्कस करते हैं. हार्मोनल एक्शन जो मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया था. तो इट इज, क्यों इसको हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑर्गन दैट इज स्किन, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड. ठीक है, एंड देन इट एक्ट्स ऑन द टारगेट सेल. सो बेसिकली इट एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन हार्मोन. तो हार्मोन्स भी ऐसे ही होते हैं. दीज हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एंड देन दे रीच द टारगेट सेल. देन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में, नैनोग्राम्स में इट इज रिक्वायर्ड. Structurally also resembles the steroid hormones. Chemical structure is like steroid hormone. It is synthesized by the photoactivation, transported through blood in the bound form. Mechanism of action also similar. Cytosol receptors, then nuclear receptors, then DNA, mRNA, and then the protein synthesis. UV light stimulates the melanin production, reduces conversion efficiency. It regulates the calcium phosphorus metabolism both at intestinal and bone levels. So that is why it is called as a hormone. ठीक है, अगेन सिमिलैरिटीज डिस्कस की गई हैं. हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड इन वन ऑर्गन, ट्रांसपोर्टेड, देन टारगेट ऑर्गन स्पेसिफिसिटी. ठीक है, जैसे हार्मोन जो है वो अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं, वैसे ये भी करता है. ठीक है, इंटेस्टाइन पे, बोन पे, किडनी पे ही एक्ट करेगा. देन साइटोसोल रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाता है, अंदर जाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है एमआरएनए, एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स को राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन से सिंथेसाइज करवाता है. देन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. नेक्स्ट कमिंग टू द डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो सबसे पहले रिकेट्स इन यंग ग्रोइंग एनिमल्स. ठीक है, तो रिटार्डेड ग्रोथ, डिक्रीज्ड फीड कंजम्पशन, फेलियर ऑफ बोन कैल्सिफिकेशन, सो बोन्स बिकम सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, इजिली फ्लेक्सिबल, सो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, बोइंग ऑफ लेग्स हो जाते हैं बेसिकली. तो एनलार्ज जॉइंट्स, नी, फेटलॉक जॉइंट्स, स्वोलन जॉइंट्स, बोइंग ऑफ लेग्स, करेक्टरिस्टिक बो लेग्स, नॉक नीज हो जाते हैं. पोल्ट्री में पेंगुइन लाइक स्क्वाड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सिट्स ऑन हॉक्स. देन बीडेड रिब्स, रेक्टिक रोजरी, हमने कैल्शियम के टाइम पे भी इसको डिस्कस किया था. बीडेड रिब्स हो जाती है, रेक्टिक रोजरी. डिलेड टूथ इरप्शन, सॉफ्ट टीथ इन यंग एनिमल्स. लेइंग हैंड्स, सबसे ज्यादा लेइंग हैंड्स गेट्स अफेक्टेड. एग प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, सॉफ्ट शेल्ड एग्स हो जाते हैं. Then parathyroid gland get enlarged, hyperplasia in vitamin D deficient animals. Then blood में changes क्या होंगे, कैल्शियम और फॉस्फोरस कम होगा, alkaline phosphatase will increase in the blood. Then adults में क्या होता है, osteomalacia. We have already discussed osteomalacia, osteoporosis and osteopenia. ठीक है, जब हमने कैल्शियम डिस्कस किया था. So osteomalacia is in adults. Softening of bones due to inadequate mineralization. Bones become brittle, easily fractured. सीन इन अडल्ट काउस, रिपीटेड प्रेगनेंसीज में ज्यादा होते हैं क्योंकि कैल्शियम ड्रेन हो जाता है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन. कॉमनली एसोसिएटेड विद लो कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो, डिफिकल्टी इन राइजिंग, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स हो जाते हैं इससे. मैल एब्जॉर्प्शन, देन जॉ बोन्स आल्सो बिकम सॉफ्टन, देन मैस्टिकेशन इज आल्सो अफेक्टेड. अब स्पीशीज स्पेसिफिक देखते हैं हम. रिकेट्स होते हैं काव्स में, ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स. मिल्क फीवर इज आल्सो कॉज्ड इसी की वजह से. देन डिफिकल्टी टू राइज, बेसिकली मिल्क फीवर इट इज रिकम्बेंसी हो जाती है इसमें. पोल्ट्री में पेंगुइन लाइक स्क्वाड जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, देन सॉफ्ट शेल्ड एग्स, शेललेस एग्स, देन डिक्रीज्ड एग प्रोडक्शन, हैचेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड. थिन शेल्ड एग्स, ब्रेकेज इन ट्रांजिट. पिग्स में रिकेट्स, अगेन बीडेड रिब्स, सॉफ्ट थिन शेल्ड एग्स, पोस्टीरियर पेरिसिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद पैरालिसिस. ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है.
Then dogs में rickets, rubber jaw syndrome, osteoporosis, and last metaphysis of long bones. Sheep में भी similar. Then diagnosis कैसे होते हैं? Calcium levels, phosphorus levels low हो जाते हैं, calcium phosphorus ratio gets affected. Then अगर radiography होगी तो bone rarefaction हो जाती है, serum के level से भी check करते हैं. Even alkaline phosphatase is also increased. Next coming to the vitamin E. ठीक है. So this was all. आज हमने vitamin A और vitamin D कर लिया. Vitamin E we will discuss. Vitamin E and vitamin K alongside water soluble vitamins we will discuss tomorrow. Let's meet tomorrow to discuss the rest.